Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 6 of class 10th maths, that is triangle. Okay. So student, in the last part we had discussed exercise 6.3. Okay. So today I am going to start some important theorems regarding similarity of triangles. Okay. So what is the theorem? Let's write. Okay. So the theorem is if two triangles are similar, if two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional and they are proportional to the corresponding perimeters. Okay, to the corresponding perimeters. So this is the theorem, student. This is the theorem regarding similarity of triangle. What is the theorem? If two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional and they are proportional to the corresponding perimeters. Okay. So student, as you know that when two triangles are similar, then what we know? If two triangles are similar, then their corresponding angles are equal and the ratio of the corresponding sides are proportional. Okay. But in this case, we have to prove that the ratio of the corresponding sides are also proportional to the perimeter of the triangles. Okay. So for this understanding this theorem, student, we should know how to apply the method. Okay. So first we will draw true triangle. Okay. So first triangle is suppose triangle ABC, and second triangle is triangle DEF. So suppose there are two triangles ABC and triangle DEF which are similar. So in the given, what we will write? We will write triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay. So what we need to prove? So we need to prove, student, the ratio of corresponding side of the triangles are also proportional to the corresponding medians. It means that AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF is equal to perimeter of triangle ABC divided by perimeter of triangle DEF. This we have to prove. Means that if two triangles are similar, then the ratio of corresponding sides are also proportional to the corresponding perimeters. Okay, मतलब कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी corresponding साइड का रेशियो तो सेम होता ही है और ये रेशियो किसके प्रोपोर्शनल भी होता है? उनके पेरीमीटर के रेशियो के भी प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. सो दिस वी हैव टू प्रूव. सो फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट? वी विल राइट इट प्रूफ. ओके, एंड इट इज गिवन ना, गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, and if two triangles are similar, then the ratio of the corresponding sides are equal. So I can write, so AB upon DE will be equal to
BC upon EF will be equal to AC upon DF, ठीक है। क्योंकि ये होता है, अगर क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि जो वैल्यू AB बाई DE की आएगी वही वैल्यू BC बाई EF की आएगी और वही वैल्यू AC बाई DF की आएगी, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट, लेट, हमने लोगों ने एज्यूम कर लिया लेट, क्योंकि इन सभी का रेशियो आपस में बराबर है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू K सपोज कोई नंबर है, मतलब कि इन AB बाई DE कुछ ना कुछ आएगा ना, तो मान लिया वो क्या आएगा K, मतलब कि AB बाई DE की K के बराबर है, BC बाई EF भी K के बराबर है एंड AC बाई DF भी K के बराबर है। सो दिस वी हैव एज्यूम। सो वन बाय वन वी विल इक्वेट द रेशियो ऑफ द साइड इज इक्वल टू K, ठीक है। यहां से क्या पता चल रहा है कि AB बाई DE भी K के बराबर है, BC बाई EF भी K के बराबर है और AC बाई DF भी K के बराबर है। सो आई कैन राइट ना, फ्रॉम हियर आई कैन राइट AB बाई DE विल बी इक्वल टू K ना। AB बाई DE भी किसी बराबर है, K के, क्योंकि सब आपस में बराबर है, तो यानी कि AB बाई DE भी K के बराबर होगा। तो यहां से व्हाट वी कैन राइट स्टूडेंट, वी कैन राइट AB विल बी इक्वल टू K टाइम्स DE होगा। अगर हम T का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो AB विल बी इक्वल टू K टाइम्स DE। सिमिलरली अब ऐसे में क्या कर सकता हूं, सिमिलरली BC बाई EF भी K के बराबर होगा। सो यहां से BC की वैल्यू क्या आएगी, BC विल बी K टाइम्स EF एंड सिमिलरली नाउ आई कैन राइट डायरेक्टली अबाउट AC, सिमिलरली AC इज इक्वल टू K टाइम्स DF, ठीक है। ये सारे रिजल्ट आ गए हम लोग के इससे, ठीक है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, सपोज आई हैव रिटन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, सपोज आई हैव रिटन, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल द साइड। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC में क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC आएगा। अरे पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी AB प्लस BC प्लस AC। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी DE प्लस EF प्लस DF, ठीक है। नाउ यहां तो क्या रहेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड इन द डाउन साइड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है। और इस साइड मैं क्या कर रहा हूं, AB, BC और AC की वैल्यू जो निकाले हैं वहां पुट करने जा रहा हूं। AB की वैल्यू क्या आई थी, AB इज इक्वल टू K टाइम्स DE, BC इज इक्वल टू K टाइम्स EF and AC is equal to K times DF. So all the value of AB, BC and AC I am putting here. So AB will be K times DE, BC will be K times EF and AC will be K times DF divided by DE plus EF plus DF, ठीक है। सो इधर तो यही रहेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। और यहां से स्टूडेंट न्यूमरेटर में से अगर हम लोग K कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, DE प्लस EF प्लस DF डिवाइडेड बाई DE plus EF plus DF. So now student you can see na, numerator and denominator same thing are coming, DE plus EF plus DF, DE plus EF plus DF। क्या किया हम लोगों ने, AB BC की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दिया। तो AB की वैल्यू K टाइम्स DE था, BC की वैल्यू K टाइम्स EF एंड AC की वैल्यू K टाइम्स DF।
इनको पुट किया, उसके बाद k कॉमन ले लिया, तो ऊपर न्यूमरेटर में k इंटू ब्रैकेट में डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ आ गया, और डिनोमिनेटर में भी डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, k बचेगा, क्या बच जाएगा, k। अब ध्यान दो, हमको पता था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल था, यानी कि प्रोपोर्शनल था, तो यानी कि AB बाई डी, BC बाई EF एंड AC बाई DF इक्वल थे, उसको मैंने k मान लिया था, ठीक है, उसको मैंने मतलब कि इन सबके रेशियो को मैंने क्या माना था, k, मतलब कि AB बाई डी भी k के बराबर है, BC बाई EF भी k के बराबर और AC बाई DF भी k के बराबर। और जब हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF किया, यानी कि दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का जब रेशियो निकाला तब भी क्या आया, k। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड तो आपस में प्रोपोर्शनल होती ही हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स के भी प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी और वो प्रोपोर्शनल होगी उनकी करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर से। तो देखो दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का जो रेशियो आया वो भी k आया, और हमने जो साइड्स का रेशियो माना था वो भी क्या माना था, k, मतलब कि दोनों का रेशियो k के आ रहा है। इसका मतलब इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then the corresponding sides are proportional and they are also proportional to the corresponding perimeters. So after there, I hope you have noted down all these things, especially the left one. So in the end, what we will write, student? In the end, what we will write from here? So AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC by DF is equal to perimeter of triangle ABC divided by perimeter of triangle DEF, क्योंकि AB by DE का भी रेशियो k था, BC बाई EF का भी k था, AC बाई DF का भी k था, और जब हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF निकाला वो भी कितना आया, k। तो मतलब कि ये सारे रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये होता है, ये याद कर लो कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल होती हैं और करस्पॉन्डिंग साइड उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के भी प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि AB बाई DE विल बी इक्वल टू BC बाई EF विल बी इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। अब देखो ये चीज है ना, अब इसको एज अ क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा कि दो ट्रायंगल का पेरीमीटर ये है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड में से एक साइड दी हुई है, तो आपकी दूसरी साइड निकालनी है। तो देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन चारों में से कोई भी दो एट अ टाइम लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया है जब इक्वल टू में बहुत सारी चीजें आए तो सॉल्व करने के लिए कोई भी दो को एक साथ लिया जाता है, या तो आप इन दोनों को लो, या तो आप इन दोनों को लो, या तो आप इन दोनों को लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेना है, ठीक है। मान लो कि दो ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन होगा, उसमें AB दिया होगा, आपको DE फाइंड करना होगा, तो आप AB बाई DE को किसके इक्वल कर दोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। क्वेश्चन देखना, आपके बुक में क्वेश्चन हो गए ऐसे, या आपके सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन होंगे, तो आप सॉल्व करना उससे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आफ्टर दैट वी विल डू वन सिमिलर थ्योरम रिगार्डिंग मीडियंस, ओके। सो यू नोट डाउन इट, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट थ्योरम फॉर टुडे। Now students, next theorem for today, that is if two triangles are equiangular, prove that the ratio of corresponding sides is same as the ratio of corresponding medians, okay? So first you should think about what is equiangular। देखो स्टूडेंट, equiangular मतलब कि दो ट्रायंगल के corresponding एंगल, जितने भी corresponding एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल। तो अगर दोनों ट्रायंगल के corresponding एंगल्स इक्वल है तो उन ट्रायंगल्स को बोलते हैं इक्विएंगुलर, और इक्विएंगुलर ट्रायंगल हमेशा आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए सिमिलर ट्रायंगल को कभी कभी इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स भी बोला जाता है, और होता भी है। इक्विएंगुलर ट्रायंगल हमेशा एक सिमिलर ट्रायंगल होगा, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल के बारे में लिखा है कि दे आर इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर का मतलब कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल so both the triangle will be similar, ठीक है। तो कहीं अगर इक्विएंगुलर भी दिखता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो दोनों क्या है, सिमिलर। और इतना याद रखो कि इक्विएंगुलर का मतलब corresponding angles are equal,
और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, इसीलिए कहीं कहीं इक्वी एंगुलर लिखा होता है, कहीं कहीं सिमिलर ट्रायंगल लिखा होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज गिवन इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर। तो पहले हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC and this is a triangle DEF, ठीक है। There are two triangle, first one is ABC, what is happening today? Okay, suppose this is triangle ABC and this is a triangle DEF and these two are equiangular. Equiangular means it is given that triangle ABC is similar to triangle DEF. Why? Because both triangles are equiangular, ठीक है। both triangles are equiangular. And if both triangles are equiangular, it means that corresponding angles are equal. So what we need to do, we have to prove that the ratio of corresponding sides is same as the ratio of corresponding medians. So first we should draw the medians. Let the median of triangle ABC is AD and suppose it is DG, ठीक है। मीडियन इज नॉट द एल्टीट्यूड स्टूडेंट। मीडियन क्या होती है, वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट, ओके। सो वी नीड टू एडी एंड डीजी आर द मीडियंस। तो कंस्ट्रक्शन यहां पे किया हम लोगों ने, क्या किया, कंस्ट्रक्शन यहां किया ना, यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या किया कि मीडियन ड्रॉ किया। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे एडी एंड डीजी are medians, ठीक है, are medians. So what we need to prove student, we need to prove the ratio of corresponding side is same as the ratio of corresponding medians. मतलब कि जिस साइड पे मीडियन है उसका रेशियो उनके corresponding medians के रेशियो के बराबर होगा। So it means that we have to prove कि ट्रायंगल की किस साइड पे मीडियन है। तो ट्रायंगल की किस साइड पे मीडियन है, BC और EF पे। तो जो रेशियो BC बाई EF का होगा वही रेशियो AD बाई, सॉरी इट इज नॉट AD स्टूडेंट, सपोज इट इज AM, ठीक है। यहां पे AM क्योंकि D दोनों में है ना, तो D यहां पे कॉमन मिल जाएगा, तो DM AM, ठीक है। AM एंड DG आर मीडियन, सो AM अपॉन DG। यहां मैंने D लिख लिया था, D नहीं होगा क्योंकि यहां तो D है ही ना, तो दो सिमिलर चीज एक नहीं हो सकती एक साथ। तो सपोज इन दिस ट्रायंगल AM इज द मीडियन एंड इन दिस ट्रायंगल DG इज द मीडियन। तो कंस्ट्रक्शन में लिखा लेट AM एंड DG आर मीडियन। सो वी नीड टू प्रूव दैट BC अपॉन EG इज इक्वल टू AM अपॉन DG, ठीक है। BC अपॉन EG इज इक्वल टू AM अपॉन DG। मतलब कि जो रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का होगा वही रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस का होगा, ठीक है। केवल BC अपॉन EF भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट, AB अपॉन DE भी हो सकता है और AC अपॉन DF भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो मैं अभी बता दूंगा आपको, आगे देखिए, पहले प्रूफ देखिए इसका। अभी पता है ना हम लोग को स्टूडेंट कि ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विएंगुलर एंड ऑल इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। And if these two triangles are similar, so we can say ना the ratio of the corresponding sides are proportional or equal. So क्या होगा, AB by DE will be equal to BC by DF, sorry BC by EF BC by EF, okay, BC by EF is equal to AC by DF। ये होगा। और क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल A विल इक्वल टू एंगल D, एंगल B विल इक्वल टू एंगल E
एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। और दो जो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। दैट इज ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट एक बात बताइए मुझे कि ए बी बाई डीई तो बीसी बाई ई एफ के बराबर है ना। ए बी बाई डीई बीसी बाई ई एफ के बराबर है, देखो यहां लिखा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, ये जो m है m बीसी का मिड पॉइंट होगा। m विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी बिकॉज एम इज द मीडियन, और अगर ये मीडियन है तो m ये मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए बी बाई डी को तो ए बी बाई डी रख दिया, और बीसी को क्या ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी एम, ट्वाइस ऑफ बी एम, क्योंकि बीसी का ट्वाइस ही बीसी हो, बीएम का ट्वाइस ही बीसी होगा, क्योंकि बीएम और एमसी इक्वल होगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ बीएम विल बी बीसी। तो बीसी की जगह मैंने ट्वाइस ऑफ बीएम लिख दिया और ईएफ की जगह लिख दिया ट्वाइस ऑफ ईजी। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बाई डीई विल बी इक्वल टू बीएम बाई ईजी। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं ट्राइंगल ए बी एम लू, ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डीईजी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डीईजी, तो हम लिख सकते हैं ना, एंड ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी एम अपॉन ईजी। अभी किया हम लोगों ने, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी एम अपॉन एजी, ये हो गया। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो अब देखो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डीईजी? यस, दे कैन बी सिमिलर बाय विच क्राइटेरिया, बाय एसआईएस क्राइटेरिया। कैसे? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अनदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग द एंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि जो भी इन दोनों एंगल को बना रही है साइड्स, वो आपस में क्या हो, प्रोपोर्शनल। इस एंगल को ए बी बना रही है और इसको डी बना रही है, तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी एम बाई ई जी, which is here, and angle B is equal to angle E. So by SAS criteria, यही तो होता है, एक एंगल दोनों ट्राइंगल का, और दोनों ट्राइंगल में एंगल्स को बनाने वाले साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल, तो वो SAS से सिमिलर होते हैं। अरे देखो, इस एंगल B को कौन कौन सी साइड बना रही है, ए बी और बी एम, और इसको बना रही है डीई और ईजी। तो यानी कि जो ए बी अपॉन डी विल बी इक्वल टू बी एम अपॉन ईजी, जो कि है इक्वल। एंड क्राइटेरिया by SAS criteria, triangle ABM is similar to triangle DEG, और अगर सिमिलर है ये, तो AB अपॉन DE, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो AB अपॉन DE विल बी इक्वल टू AM अपॉन DG, होगा कि नहीं? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो जो रेशियो ए बी बाई डी का होगा वही रेशियो ए एम बाई डी जी का होगा, और वही रेशियो बी एम बाई ई जी का होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? सो इफ दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी जी। ठीक है, लेकिन बट वी नो ना कि ए बी अपॉन डी जो था वो स्टार्टिंग में बीसी अपॉन ई एफ के बराबर था कि नहीं? ए बी अपॉन डी किसके बराबर था, बीसी अपॉन ई एफ के। तो अगर इन दोनों को इक्वेट किया जाए, यहां पर ए बी अपॉन डी ए एम अपॉन डी जी के इक्वल है, यहां पे ए बी अपॉन डी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे, तो बीसी अपॉन ई एफ विल बी इक्वल टू ए एम अपॉन डी जी। हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ए एम अपॉन डीजी बीसी अपॉन ई एफ के ही इक्वल होगा, मतलब कि वो इक्वल सारे साइड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि क्या लिखा हुआ है, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंगुलर देन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का वही रेशियो होगा जो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो होगा। तो ए बी बाई डी भी तो बीसी बाई ई एफ के बराबर था, ए बी बाई डी भी बीसी बाई ई एफ के बराबर था,
और BC बाई EF AC बाई DF के ही बराबर था, तो अगर सबको लेके चला जाए तो हम लिख सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वही करस्पॉन्डिंग मीडियन का भी रेशियो होगा। ठीक है, AM बाई DG। तो आप इससे यहां ये रिजल्ट निकाल सकते हो, क्योंकि ये तीनों तो आपस में इक्वल ही होते हैं ना। और BC अपॉन EF तो AM अपॉन DG के इक्वल है, तो अगर BC अपॉन EF भी AM अपॉन DG के इक्वल है तो यानी कि सारे रेशियो भी AM अपॉन DG के ही इक्वल होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर हैं या अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का वही रेशियो होता है जो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस का होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? AB बाई D इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF विच इज ऑल्सो इक्वल टू AM बाई DG। मतलब कि जो साइड्स का रेशियो होगा वही रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो होगा। ठीक है, ऐसे ही थ्योरम है, बस क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग मीडियंस की जगह करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मीडियंस की जगह करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आ जाएगा। देखो दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर थे और इक्वल एंगुलर ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। इक्वी एंगुलर का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो सिमिलर होगा ही। तो गिवन में था ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। उसके बाद हमको मीडियंस के बारे में प्रूव करना था, तो हमें मीडियंस बनाना पड़ेगा। तो लेट पहले ट्रायंगल में AM मीडियन है और दूसरे ट्रायंगल में DG मीडियन है। फिर हमको क्या प्रूव करना है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर होगा। तो BC बाई EF इज इक्वल टू AM बाई DG, या BC, या ये प्रूफ लिखो, टू प्रूफ में चाहिए पूरा लिखो चाहिए लिखो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि BC बाई EF भी AB बाई DE के बराबर ही होगा और AC बाई DF के बराबर ही होगा। तो चाहे ये लिखो टू प्रूफ में जो यहां लिखा है मैंने, चाहे ये लिखो, बात एक ही है। उसके बाद हमने जो गिवन था उससे लेके चले, गिवन था कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। और चूंकि दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर थे तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल E, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल F। तो यहां से क्या किया मैंने, दो को एट अ टाइम ले लिया, AB अपॉन D को BC अपॉन EF के इक्वल लिया। अब BC अपॉन EF को मैंने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ BM एंड ट्वाइस ऑफ EG। सॉल्व किया तो AB बाई D इज इक्वल टू BM बाई EG आ गया। अब क्या किया, एक ट्रायंगल ABM लिया और एक ट्रायंगल DEG लिया, दोनों को सिमिलर दिखाया बाई SAS क्राइटेरिया और उससे कुछ रिजल्ट निकाले और दो इक्वेशन को कंपेयर करके फाइनल रिजल्ट लाया। तो कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल्स अगर इक्वी एंगुलर हैं या दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का वही रेशियो होता है जो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस का होता है। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन इट स्टूडेंट। सिमिलरली एक और थ्योरम है स्टूडेंट जो आप खुद से कर सकते हो, आप बुक में देखना, कि अगर दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं तो प्रूव दैट द रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। बस यहां मीडियन की जगह क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड। तो कहने का मतलब है उस केस में AM क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड, और DG क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। तो उस केस में क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, सब कुछ सेम है। इन्हें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर कैसे दिखाओगे उस केस में, डबल ए से। डबल ए से कैसे, क्योंकि एंगल B एंगल E के इक्वल होगा और ये भी एल्टीट्यूड है ये भी एल्टीट्यूड है, तो 90-90, तो डबल ए से वो भी हो जाएंगे सिमिलर। और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आएगा। तो वो वाला थ्योरम भी आप कर लोगे। तो वो वाला थ्योरम क्या है वो आपको खुद से करना है, और वो क्या है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, सब कुछ सेम है। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर प्रूव दैट द रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो करस्पॉन्डिंग, बस मीडियन की जगह आपको एल्टीट्यूड लिखना है। मीडियन की जगह क्या लिखना है, एल्टीट्यूड। और जब एल्टीट्यूड लिखोगे तो यहाँ पे AM परपेंडिकुलर होगा और DG भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहां पे क्या लिख दोगे, AM एंड DG आर एल्टीट्यूड, और यहां तक सब कुछ सेम होगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम होगा। उसके बाद ये चीज नहीं करनी है, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट नहीं करना है, यहां से स्टार्ट करना है और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, दैट इज ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEG। ठीक है, ABM एंड DEG दोनों को सिमिलर दिखा दोगे आप। कैसे, इसका एंगल भी इसके एंगल E के इक्वल है और इसका एंगल AM भी इसके एंगल DGE के इक्वल है, तो डबल ए से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो AB बाई DE विल बी इक्वल टू AM बाई DG, AB बाई DE विल बी इक्वल टू AM बाई DG, बट AB बाई DE इज ऑल्सो इक्वल टू ना BC बाई EF। तो जब दोनों इक्वेशन को
वो करोगे, क्या बोलते हैं, इक्वेट, तो BC बाई EF विल बी इक्वल टू AM बाई DG। सब कुछ सेम है, बस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा और ये वाला पार्ट हट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इसकी एल्टीट्यूड के केस में डबल ए से होगा। डबल एस इसलिए होगा क्योंकि अगर ये एल्टीट्यूड होगा तो M कोई जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट ही हो। मीडियन के केस में तो M मिड पॉइंट ही होगा, लेकिन एल्टीट्यूड जब ड्रॉ करोगे तो M कोई जरूरी नहीं है कि BC का मिड पॉइंट ही हो, इसलिए ये वाला पार्ट हम नहीं कर पाएंगे उसमें, और इस वाले पार्ट के लिए हम लोग डबल ए यूज करेंगे। तो ये वाला थ्योरम आपको खुद से करना है कि अगर दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वही होगा जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का होगा। तो ध्यान दो स्टूडेंट, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा थ्योरम कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, एक ये पढ़ा। दूसरा पढ़ा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का वही रेशियो होता है जो उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का होता है, ठीक है। सिमिलरली तीसरा ये पढ़ा कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही होता है जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस का होता है, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही होता है जो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का होता है। मतलब कि साइड का रेशियो तो है, ये साइड का रेशियो तो आपस में इक्वल है, वो रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के भी इक्वल है, उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के भी इक्वल है, उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के भी इक्वल है। तो इन्हीं चारों चीजों से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक ही ऐसा है सारा, दो ट्रायंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के भी बराबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के भी बराबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के रेशियो के भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने बुक से कर लीजिएगा। अब बस फाइनल चीज बची है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, उसका कॉन्वर्स नहीं पढ़ना है क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया है इस बार के सिलेबस में। तो पाइथागोरस थ्योरम बचा है एक थ्योरम और उससे रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे इस चैप्टर में, उसके बाद ये हो जाएगा चैप्टर फिनिश। ओके, सो आई होप यू आर watching the videos and you are studying properly. Remaining thing student we will discuss in the next part of the video. So till then students, have a nice day. Take care. Thank you.